राधा सम्मुख संसक्ति सखी संग निवासिनी तमहं सततं वन्दे माधवाश्रय विग्रहम् नमः विष्णुपादाय केशवाविन्नरूपिणे श्रीमते भक्तिवेदान्त वामनरूपधारिणे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कবে मोरे शुभदिन হইবে উদয় বৃন্দাবন ধাম মম হইবে আশ্রয় বৃন্দাবন ধাম মম হইবে আশ্রয় ঘুচিবে সংসার জ্বালা বিষয় বাসনা বৈষ্ণব সংসর্গে মোর পুরিবে কামনা বৈষ্ণব সংসর্গে মোর পুরিবে কামনা ধুলায় ধূসর হয়ে হরি সংকীর্তনে মত্ত হয়ে পড়ে রব বৈষ্ণব চরণে মত্ত হয়ে পড়ে রব বৈষ্ণব চরণে তবে শ্রী যমুনার তীরে কদম্ব কাননে তেরিব যুগল রূপ হৃদয় নয়নে তেরিব যুগল রূপ হৃদয় নয়নে তবে সখী কৃপা করি যুগল সেবায় নিযুক্ত করিবে মোরে রাখি নিজ পায় নিযুক্ত করিবে মোরে রাখি নিজ পায় তবে বা যুগল লীলা করি দর্শন তবে বা যুগল লীলা করি দর্শন প্রেমানন্দ ভরে আমি অবয় চেতন প্রেমানন্দ ভরে আমি অবয় চেতন ততক্ষণায় চেতনে পড়িয়া রহিব আপন শরীর আমি কবে পাশরিব আপন শরীর আমি কবে পাশরিব উঠিয়া স্মরিব পুনঃ অচেতন কালে উঠিয়া স্মরিব পুনঃ অচেতন কালে যা দেখিনু কৃষ্ণ লীলা ভাসি আঁকি জলে যা দেখিনু কৃষ্ণ লীলা ভাসি আঁকি জলে
কাকুতি বিনতি করি বৈষ্ণব সদনে, কাকুতি মিনতি করি বৈষ্ণব সদনে, বলিব ভকতি বিন্দু দেহ এ দুর্জনে, বলিব ভকতি বিন্দু দেহ এ দুর্জনে। শ্রী অনঙ্গ মঞ্জুরিরা চরণ শরণা, শ্রী অনঙ্গ মঞ্জুরিরা চরণ শরণা, এ ভক্তি বিনোদ আশা করে অনুক্ষণ, এ ভক্তি বিনোদ আশা করে অনুক্ষণ। ঠাকুর ভক্তি বিনোদ, ঠাকুর ভক্তি বিনোদ, ভক্তি বিনোদ, ঠাকুর ভক্তি বিনোদ, জগৎ গুরু ঠাকুর ভক্তি বিনোদ, ভক্তি বিনোদ ছিল ভক্তি বিনোদ। বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, গুরুদেবা জয় গুরুদেবা, গুরুদেবা জয় গুরুদেবা, জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব জয় জয় গুরুদেব। এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাহি আর, গৌরাঙ্গ বিনা নাহি আর, হেন অবতার হবে কি হয়েছে, হেন প্রেম পরচার, হেন অবতার হবে কি হয়েছে, হেন প্রেম পরচার, গৌরাঙ্গ বিনা নাই আর, গৌরাঙ্গ বিনা নাই আর। দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী প্রাণে না মারিল কারে, দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী প্রাণে না মারিল কারে, হরিনাম দিয়া হৃদয় সদিল, হরিনাম দিয়া হৃদয় সদিল, যাচি গিয়া ঘরে ঘরে, এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাই আর, এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাই আর, গৌরাঙ্গ বিনা নাই আর, এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাই আর। ভব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম জগতে ফেলিল ঢালি, ভব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম জগতে ফেলিল ঢালি, কাঙালে পাইয়া খাইল লুটিয়া, কাঙালে পাইয়া খাইল নাচিয়া, বাজাইয়া করতালি,
বাজাইয়া করতালি। এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া, গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া। হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ। হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ। চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি, চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি, তবে বাছিল এ রঙ্গ, তবে বাছিল এ রঙ্গ। এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া, গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া, গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া রে, গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া। ডাকিয়া হাকিয়া খোল করো তালে, গাইয়া ধাইয়া ফিরে। ডাকিয়া হাকিয়া খোল করো তালে, গাইয়া ধাইয়া ফিরে। দেখিয়া সমান তরস পাইয়া, দেখিয়া সমান তরস পাইয়া, কপট হানিল দ্বারে, কপট হানিল দ্বারে। এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া রে, গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া। হেন অবতার হবে কি হয়েছে, হেন প্রেম পরচার। হেন অবতার হবে কি হয়েছে, হেন প্রেম পরচার। এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া, গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া। এতিন ভুবন আনন্দে ভরিল, উঠিল মঙ্গল সোর। এতিন ভুবন আনন্দে ভরিল, উঠিল মঙ্গল সোর। কয় প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গে, কয় প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গে, রতি না জন্মিল মোর, রতি না জন্মিল মোর। এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া রে, গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া, গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া রে, গৌরাঙ্গ বিনা নাইয়া। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, सच्चिनंदन जय गौर हरि। जय सपार्षद जय गौर हरि, सपार्षद जय गौर हरि। जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग, निताय गौरांग जय निताय गौरांग। यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद, जय यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद।
मदन मोहन हरि अनंत मुकुंद मदन मोहन हरि अनंत मुकुंद यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद जय यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद अच्युत माधव राम वृंदावन चंद्र अच्युत माधव राम वृंदावन चंद्र मुरली वदना श्याम गोपी जननंद मुरली वदना श्याम गोपी जननंद यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद जय यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दंडवत प्रणाम बाबूजी। हरे कृष्णा बोली हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सकल चरण प्रणाम धन्यवाद। हरे कृष्ण बाबूजी। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। वंदे हंसि गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांसु श्री रूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादन सहगन ललिता श्री विशाखान्विता अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभोदे पादम्भुजयते नमो। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमिष्ठं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महम्भोधस्तिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्राशदन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा अवसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनोति सहो गोगनयस्तैर्यत् पानीय सुजबस कंदर कंदमूलै गोवर्धन ययति शैलकुलादिरायो युगुपिकाभिरुदितो हरिदास वर्जो कृष्णेन सक्रमक भंग कितार्चित यत् सप्ताहमश्य करपद्मतले अवाप्सित सप्ताहमेवाच्युतहस्तपङ्कज भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरे संक्षिप्यमानं हरिमात्मवन्दे गोवर्धनार्दिं शिरसां नमामि। विन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियाय ये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्र मुझे गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांतो श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय
श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। क्षमागत भक्तविंद, क्षमागत मातृविंद, आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा एक दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदों में हम लोग बेन का प्रसंग जो है, बेन महाराज का प्रसंग आज हम लोग श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया महाराज अंगो बेन का ही पिता है, पुत्रों को उन्होंने प्राप्त किए। प्राप्त करने के बाद उस पुत्रो इस प्रकार दुष्ट हुआ, इस प्रकार दुष्ट हुआ जिस पुत्रों के कारण महाराज अंगो ने संसार छोड़ करके वन में चले गए। अंगो महाराज जी ने खूब करके समझाया अपने पुत्र को, देखो बेटा, इस प्रकार दुष्कर्म, इस प्रकार अपकर्म नहीं करना है, पर जिनका जैसा स्वभाव है वो स्वभाव कभी नहीं छोड़ पाएंगे। अंतों में जाकर के पिता ही सब कुछ छोड़ करके, राज्य, धन, संपत्ति, पत्नी को छोड़ करके अकेले ही वन चले गए। और वन चले गए तो चले ही गए, किसी प्रजाओं ने भी, किसी मंत्री ने भी महाराज जी को खोज नहीं। राजा है नहीं राज्य में तो संसार कैसे चलेगा। ऋषियों ने अनेक विचार किया, विवेचना किया है। अब राजा के बिना प्रजा का क्या हाल होगा। राजा तो होना चाहिए। तो राजवंश में और कोई था ही नहीं है। उन दुष्टात्मा को छोड़ करके, बेन को छोड़ करके, यद्यपि ऋषि लोग सब कुछ जानते हैं, इनका चरित्र किस प्रकार है, इनका व्यवहार किस प्रकार है, फिर भी ऋषि लोग आकर के खूब करके समझाया। समझाने के बाद लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए उन बेन को राज सिंहासन में बैठाया, केवल प्रजा के हित के लिए। पर राज्य के कोई भी प्रजा बेन को राजा के रूप में स्वीकार किया नहीं। सब लोग जानते थे बेन किस स्वभाव वाले हैं। प्रजा मन में तो कोई स्वीकार किया ही नहीं है ये हमारा राजा बना। जब राजा बना, राजा बनने के बाद जब सारा शक्ति उनके हाथ में आई और इस प्रकार अहंकारी, इस प्रकार दांभिक बने और किसी को माना ही नहीं। कौन गुरु है, कौन लघु है, किसके साथ किस प्रकार व्यवहार करना है, बेन ने सब कुछ छोड़ दिया। और कहां तक गए, बेन ने ये भी अपने राज्य में सर्वत्र घोषित कर दिए हैं। क्या घोषित कर दिए हैं, मेरे राज्य में आज से कोई भी पूजा पाठ जो है ना, पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को पूजा पाठ करना देखते तो देखते ही बेन को अत्यंत क्रोध हुआ था। और क्रोध के कारण उन प्रजा के साथ जिस प्रकार व्यवहार, इस प्रकार करने लगे। आप देखिए बेन ने क्या किए है, पूरे देशों में, अपने देश में सब कुछ बंद कराने के लिए उन्होंने घोषित किए हैं। ऐसा नहीं है, कैसे, न यष्टव्यम न द्वातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचि इति न्यावारयत् धर्मम
भैरी घोषेण सर्वशः क्वचित कदापि द्विजाः ब्राह्मण लोग, कोई भी है, न यष्टव्यम न द्वातव्यम न होतव्यम, मेरे राज्य में न यष्टव्यम, कोई जाग यज्ञ होम कोई दान नहीं कर पाएंगे। ये भैरी घोषेण सर्वशः, ये जो निषेध है बेन महाराज ने निषेध कर दिए। आज से मेरे राज्य में ना तो कोई दान कर पाएंगे, ना तो कोई होम कर पाएंगे, ना तो यज्ञ कर पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। जब इस प्रकार बेन ने अपने राज्य में घोषित किए हैं, सर्वत्र सारे लोग जान गए हैं बेन इस प्रकार घोषित किया है, संत महात्माओं को मन में ये बात सुन करके अत्यंत दुख हुआ। क्या किया जाए? सभी महात्माओं मिलकर के अब चर्चा करने लगे, कोई तो उपाय तो करना ही है। जिन दुरात्माओं को हम लोगों ने कृपा करके राज्य पद दिलाया, राज सिंहासन दिलाया, और वो दुरात्मा अब उन ऋषियों के ऊपर, उन महात्माओं के ऊपर इस प्रकार उनका दुराचार, इस प्रकार व्यवहार, यह सहन नहीं होता। जैसे कैसे अहेरिवो पय पोष पोषकश्यप्यनर्थभूत, अहे इव, अहे होता है अहि सांप, पयः पोष, दूध दे करके सांप को पोषण करेंगे, पालेंगे, पोषणस्य अपि अनर्थ वृत्त, देखिए जो पोषण करता है ना, दूध देकर जो सांप पालते हैं, अनर्थ उसका ही एक दिन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो खल है, जो नास्तिक है, जो दुरात्मा है, धर्म कर्म कुछ नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता है, ऐसे व्यक्तियों को जो मानता है, जो पालता है, उल्टा ही वो व्यक्ति एक दिन सर्वनाश करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए अहेरिवो पयो पोषः पोषकश्यप्यनर्थभेद बेनः प्रकृत्यैव खलः सुनिथा गर्भ संभव। ये बेन जो है ना, ये प्रकृति से ही, ये स्वभाव से ही खल है। सुनिथा के गर्भ में उसी रूप जन्म हुए है, ये अत्यंत नास्तिक है, अत्यंत दुरात्मा है, इस प्रकार पुत्र जन्म। अब क्या किया जाए? इस प्रकार सभी महात्माओं ने निश्चय किया है, कुछ तो व्यवस्था करना ही है। प्रजा कल्याण के लिए, प्रजा के हित के लिए उनके पास जाना है, जाकर के उनको समझाना है। देखो, इस प्रकार अपकर्म, इस प्रकार दुष्कर्म तुमको नहीं करना है। समझाने के बाद अगर नहीं माने तो जो करना है वो हमें करना चाहिए। देखिए, अगर हमारे पास समर्थ है, ऐसा कोई अपकर्म कर रहा है अपने संसार में, अपने परिवार में, अगर आप में क्षमता है, आप में उस बोलने का अधिकार है, आपको जरूर बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे, ये दोष का भाग आपको भी लेना पड़ेगा। ये संसार विचित्र है। देखिए, दोष करता है कोई और भाग लेता है और कोई, क्योंकि आप में वो समर्थ है, आप में वो अधिकार है निषेध करने के लिए, समझाने के लिए। अगर आपने चेष्टा किया है, चेष्टा करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, वो तो अलग बात है, पर शुरू से आपने कुछ चेष्टा किया ही नहीं है, उनको समझाने के लिए आपने कोई प्रयास किया ही नहीं है, तो ये गलत बात है। वो व्यक्ति जो काम करेंगे, उस कर्मों का फल जो है, उस भाग तो आपको ही लेना पड़ेगा, जो देखकर भी कुछ नहीं कर। इसलिए
ब्राह्मण महात्माओं में भी ये अधिकार है बोलने के लिए, शासन करने के लिए। अगर ब्राह्मण महात्माओं होकर अन्याय को देख करके सहन कर रहा है, ये भी दोष उनमें भी आ सकते। इसलिए ब्राह्मण लोग, महात्मा लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, ये अन्याय कर रहा है। इन अन्यायकर्ताओं को अगर हम जाकर के अगर हम नहीं समझाएंगे तो ये दोष हमें भी लग जाएंगे। कहते हैं मुनयो उचुहु नृपवर्य। देखिए सारे ये ब्राह्मण, सारे महात्मा ये कह करके राजभवन में आए और राजभवन में आकर के बेन के साथ अब वार्तालाप करना है और आकर के वही कह रहा है, देखो महाराज, आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए हम लोग कुछ कहना चाहते हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या बात है? किसके लिए? नृपवर्य निबोधई तत् यत्ते विज्ञापयामते। जो आपसे हम कहेंगे, विज्ञापयामो, जो आपसे हम कहेंगे वो क्या है? आयुहु कीर्ति, आयुहु श्री बल कीर्तिनाम तब तातो विवर्धनम। आयुहु श्री बल कीर्तिनाम तब तातो विवर्धन। ये आपके आयु वृद्धि के लिए, श्री सौंदर्य वृद्धि के लिए, बल कीर्ति वृद्धि के लिए हम आपसे उपदेश करते हैं। अगर ये उपदेश आप पालन करेंगे तो आपको सारे सब कुछ ये वृद्धि हो ही जाएगी। और आयु कम है, आयु लंबी होगी। अगर रूप नहीं है, आपको रूप प्राप्त होगा। अगर यश धन, आपको सब कुछ मिलेगा। वो क्या उपदेश है? वो उपदेश केवल धर्म का उपदेश है। अगर हम धर्म को मानेंगे, सत्कर्म को करेंगे, धर्म को करेंगे, सत्कर्मों को करेंगे, तो इससे हमारे सब कुछ वृद्धि। इसलिए महाराज आपको इस प्रकार कर्म नहीं करना है। जो धर्म है ना, धर्मों का जो खंडन आपको नहीं करना चाहिए, धर्मों का विनाश आपको नहीं करना चाहिए। धर्मों से ही राजा और प्रजा, इन दोनों का कल्याण होते हैं। देखिए 4 पुरुषार्थ जो है ना, धर्मो अर्थो काम मोक्ष, सब लोग जानते हैं। इसका एक क्रम है। इन 4 पुरुषार्थ को पाने के लिए एक एक करके एक क्रम है। ऐसे नहीं है हम सीधे जाकर के मोक्ष को हम प्राप्त करेंगे। मोक्षों को प्राप्त करने के लिए, अर्थों को, काम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले मनुष्यों को धर्मों करना चाहिए, धर्मों का आचरण करना चाहिए। बोले जी धर्मों क्या है? ये भी तो बात है ना। धर्मों है क्या? जो धर्म करने से मनुष्यों के लिए अर्थों, काम, मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो ही जाएगा। वो धर्म ये है। शास्त्रों में जो उपदेश है, भगवान ने जो उपदेश किए हैं, मुनि ऋषियों ने जो उपदेश किए हैं, ये हमारे लिए धर्म है। जो शास्त्रों निर्देश निषेध किए हैं, ऋषि मुनियों ने निषेध किया है, ऐसा कर्मों नहीं करना है। शास्त्रों भी निषेध और विधि, ये दोनों कर्म ही आदि और मध्य अंत में यही बात है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए। जो करना है ये हमारे लिए धर्म है, और जो नहीं करना है वो हमारे लिए अधर्म है। धर्म करेंगे, अर्थों,
काम मोक्ष प्राप्त तो हो ही जाएगी। अधर्म करेंगे, अधर्मों से आपको आयु हानि, जस हानि, आपका धन संपत्ति जो कुछ भी है आपका सब ही नष्ट हो जाएंगे अधर्म के द्वारा। इसलिए महाराज धर्मों का स्थापना करना ही चाहिए। धर्मों को विनाश ये जो करेंगे उनके लिए अत्यंत भयानक है दिन। ऋषि मुनियों ने इस प्रकार कह रहे, देखिए अगर कोई धर्म पालन करे, धर्मों पालन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का प्रसन्नता किससे है? बोले भगवान का प्रसन्नता एकमात्र धर्मों पालन से ही। भगवान विष्णु नारायण जो है केवल धर्मों पालन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और उनकी जो प्रसन्नता है ना, भगवान प्रसन्न हो जाए और भगवान प्रसन्न होने से सदगति सबके लिए है, उनके लिए सदगति है। अगर हमने जीवन में भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, भगवान की सेवा हम नहीं कर पाए, तो हमारा सदगति कहाँ है? सदगति तभी होगी जब भगवान प्रसन्न हो। इसलिए धर्म क्या है? देखिए इस धर्मों के बारे में अनेक मतभेद है, अनेक प्रकार शास्त्र है, अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है। हम किस धर्मों को आश्रय करें? धर्मो स्वधर्मे निधनम श्रेयो परो धर्म भयावह। भगवान गीता में स्पष्ट कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयो और परो धर्म भयावह। दूसरे का धर्म अगर हम पालन करेंगे, जाजन करेंगे, वो हमारे लिए अत्यंत भयावह है। और अपना धर्म हम कुछ भी करें, थोड़ा सा भी पालन करें, वे हमारे लिए परम कल्याणदायक है। भक्तिविनोद ठाकुर यही वो धर्मों में, ग्रंथों में पहले ही ये धर्मों के बारे में चर्चा की। धर्मों शब्दों का अर्थ क्या है? धर्म हम किसे कहते? भक्तिविनोद ठाकुर वहां वर्णन किए धर्मो अर्थात स्वभाव, स्वभाव को ही धर्म कहा जाता है। उदाहरण से भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जैसे जल का धर्म क्या है, अग्नि का धर्म क्या है? एक बात में उत्तर है, जल निम्नगामी है, जल में शीतलता है। और अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म उष्णता है, अग्नि का धर्म आलोकदायक है। पर वो जो धर्म जो है ना, जो स्वाभाविक धर्म जो है, वो धर्म भी संगों के कारण, संगो दोष से वो धर्म भी बदल जाता है। बोले हाँ, बोले इस प्रकार, बोले हाँ। जैसे जल निम्नगामी जल का धर्म है, ऊपर में रखो जल नीचे प्रभावित हो। पर वो अगर जल कहीं हिमालय में जाकर के जम जाए, बर्फ बन जाए, तो बर्फ बनने के बाद वो तरल पदार्थ जो है, जल भी पत्थर के समान बन जाता है। पत्थर जैसा ऐसा ही होता है जल। पर जल का ये स्वाभाविक अवस्था नहीं है, ये अस्वाभाविक है। किसी कारण हेतु वो जल पत्थर बना हुआ है, और जल का ऐसा स्वभाव नहीं है। तो जल का स्वभाव क्या है? तरलता, निम्नगामी जल का स्वभाव है। उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्माओं का धर्मों क्या है? प्रत्येक जीवात्माओं का स्वभाव क्या है? मतलब प्रत्येक जीवात्मा का स्वभाव केवल परमात्मा का सेवा करना ही इनका परम धर्म। पर ये परमात्मा का सेवा करना, ये धर्म हम भूल गए। किसके कारण? अनादि काल से हम माया की संग करते करते, माया के पास रहते रहते अपना स्वरूप हम भूल गए। हम कौन है ये भी हम नहीं जानते।
इसलिए संसार में आकर के अपना स्वरूप न जानने के कारण हम अनेक प्रकार अपना परिचय देते हैं। कोई कहते हैं हम क्षत्रिय है, कोई कहता है हम ब्राह्मण है, कोई कहता है वैश्य शूद्र, कोई कहता है राजा, कोई कहता है स्त्री, कोई कहता है बालक युवा इत्यादि, पंडित मूर्ख इत्यादि। वास्तव में ये सब उपाधि है, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। महाप्रभु ने क्या कहा है, जीवों का स्वरूप क्या है, जीव को क्या अभिमान करना चाहिए। गोपीर भरतु पद कमल और दासानुदास। हम कौन है, हम गोपीर भरतुर पद कमल और दासानुदास। गोपी भरता जो है, भगवान जो है, उनके भक्तजन जो है, उन भक्तों के दासानुदास, ये हमारा अभिमान होना चाहिए। पर ये अभिमान हम भूल गए, क्योंकि हम अनादिकाल से माया का संग कर रहे हैं। माया का संग करने से हम अपना स्वरूप भूल गए। जैसे पिशाची पहले मतित छन्न है मन, किसी के ऊपर भूत पेट चढ़ जाए, उन व्यक्ति का जो बुद्धि जो है, उनका ज्ञान लोभ हो जाता है और दूसरा कोई ज्ञान उनके भीतर आ जाता है। उसी प्रकार सभी ऋषियों ने, मुनियों ने महाराज जी से यही कहा है, महाराज आप धर्मों का लोप मत करिए, धर्मों को स्थापन करिए। धर्मों के द्वारा ही संसार में सब कुछ होता है। अगर धर्मों को लोप करेंगे तो सब कुछ विनाश हो जाएंगे। देखिए ब्रह्म पुराण में 2 श्लोक है धर्मों के बारे में कहा है, धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य स्वर्गम च धर्मेण नरः प्रयाति। धर्मेण, धर्मों के द्वारा मनुष्य जो है ना, राज्यम लभते, बड़े बड़े राजा जो है ना, बड़े बड़े भोगी जो है, बड़े बड़े सुखी जो है, जो बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति जो है, इसका मूल कारण धर्म है। धर्म जाजन किए, धर्म पालन किए, उनके पास इस प्रकार भोगने का पुण्य है, इसलिए वो भोग कर रहा है। धर्मेण राज्यम लभते, धर्मेण स्वर्गम लभते। आप धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, आपके लिए स्वर्ग द्वार खुला रहेंगे। धर्मेण नरः स्वर्गम प्रयाति। नर जो मनुष्य जो है, धर्म को अवलंबन करके स्वर्गों को चले जाते हैं। स्वर्गोपुरी उनके लिए खुराक है। और धर्मेण आयुष्य वृद्धि, धर्म के द्वारा आपकी आयु वृद्धि होगी। आपकी कीर्ति, आपकी तप, आपका दान, जो कुछ भी है, इसका मूल कारण है अपना स्वधर्म। और धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य, मनुष्य को धर्मों के द्वारा मोक्षम लभते, मुक्ति जो है प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म तो पहले जानना होगा, धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है। अपना स्वरूप जानिए, स्वरूप जानने के बाद हमारा क्या धर्म है, हमें क्या करना चाहिए, फिर आगे चलिए। इसलिए कहे है, इस संसार में जितने ही बात धर्म के नाम से चल रहे हैं, भागवत कहे तहा परिपूर्ण छल। इस पृथ्वी में, संसार में जितने ही धर्म के बारे में हम सुनते हैं, ये धर्म है, वो धर्म है, भागवत क्या कहते हैं, ये सब छल, ये सब कैटक है। तो जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म परमात्मा का सेवन करना ही जीवों का परम धर्म है। यही हमारे लिए परम धर्म है संसार में। धर्मो अत्र माता पितरु, देखिए धर्म संसार में हमारे माता पिता के समान है। माता पिता हमें जिस प्रकार पालन पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं, संसार में धर्म भी हमें उसी प्रकार देखभाल करते हैं। आपके पास धर्म है, आप सुखी है, आपके पास अधर्म है, आप दुखी है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। आपके पास धर्म है, सारे विपद आपद से आप रक्षा हो जाएंगे। और धर्मेण क्या है, धर्मो सखा चात्रो परे चलो के, धर्म हमारे मित्र है, धर्म हमारे माता पिता है,
धर्म हमारे त्राता है, हमें उद्धार करेंगे, धर्म हमें मुक्ति दिलाएंगे। और कहा है धर्मा आदृत्य नास्ति तू किंचित एव। अगर इसी धर्म को कोई अनादर करे, धर्मों को कोई अवज्ञा करे, उन व्यक्ति के लिए संसार कहीं पर उनके लिए कोई स्थान है नहीं। जो प्रारब्ध है वो तो भोगेगा, प्रारब्ध खत्म होने के बाद जो कर्म किए, अधर्म किए, उसका फल उनको आगे मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। अनेक लोगों का इस प्रकार मन में भाव है, मन में जिज्ञासा है, अरे ये लोग तो ना तो धर्म कर रहा है ना तो कर्म कर रहा है, धर्मों का उल्टा कर्म कर रहा है, उल्टा में चल रहे हैं, तो उन लोगों के पास देखो किस प्रकार धन संपत्ति वैभव है, और हम दिन रात भगवान के भजन करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, फिर भी हमारा पहनने का वस्त्र नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने का लिए स्थान नहीं है। ये किस प्रकार विपरीत दशा है। बोले ये ऐसा नहीं है, जो आप करके आए वो प्रारब्ध जब तक है, शरीर तब तक है, उसी प्रारब्ध को तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जो हमने किए हैं कर्म, ये तो संचय हो ही रहा है, संचय कर्म आगे जा करके हमें भोग मिल जाएगा। ऐसा नहीं है हमने जो करेंगे इसका फल हमें नहीं मिलेंगे, संसार में जो करेंगे एक एक करके सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज आप धर्मों को मत नष्ट करिए, धर्मों को विनाश मत करिए, धर्मों के बिना संसार में कुछ है ही नहीं है। धर्मों नष्ट होने से संसार में जो राजा है, जो कोई भी व्यक्ति है, उनके लिए सारे सब कुछ नष्ट होता है। अगर धन है, धन नष्ट हो जाएंगे, अगर उनके लिए यश है, यश नष्ट हो जाएंगे, कीर्ति है, कीर्ति, आयु, आयु सब नष्ट हो जाएंगे धर्मों हानि होने से। जिस राज्यों में ये वर्णों आश्रम इनका आदर है, जिन राज्यों में भगवान का भजन साधन होता है, भगवान का पूजन होता है, भगवान उन प्रजाओं के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न भगवान अगर हो जाए तो मनुष्यों के लिए संसार में क्या दुर्लभ, मनुष्य के लिए संसार में क्या दुर्लभ है, सब सुलभ हो जाएंगे परमात्मा भगवान प्रसन्न होने से। इस प्रकार करके महात्मा जन, ऋषि जन खूब करके समझाए, देखो महाराज आप अभी भी आपके लिए सब कुछ है, आप सदमार्ग में चलिए, आपका कल्याण हो जाए। अरे बाबू ये बात सुन करके दुष्टात्मा बेन जो है ना, अब बेन को बड़ा गुस्सा आया। अब गुस्सा के साथ बेन क्या कहते हैं सुनिए, बालिसा व तो यूयम वा अधर्मे धर्ममाणिनः ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। यूयम, यूयम होते तुम लोग, मुझे तो लग रहा है तुम लोग जो उपदेश दे रहे हैं ना, महात्माओं से कह रहे हैं, उन ऋषियों से कह रहे हैं, अधर्मे धर्ममाणिनः, ये आप लोगों का उपदेश अधर्म को ही आप लोग धर्म मान रहा है। देखिए उल्टा ही हो रहा है, ये कलियुग है, कलियुग में विशेष जो धर्म कर्म करेंगे उन व्यक्तियों के ऊपर ज्यादा करके कष्टों, ज्यादा करके उनके ऊपर लांछना, ज्यादा करके उनके ऊपर अत्याचार होंगे। और बेन वही कह रहा है, आप लोग जो उपदेश दे रहे हैं ये वास्तव में धर्म नहीं है, ये वास्तव में अधर्म, क्योंकि अधर्मे धर्ममानिनः वतः बालिश यूयम। मुझे तो लग रहा है वत होता है निश्चय करके, बालिश, बालिश अर्थात आप लोग, तुम लोग अत्यंत मूर्ख है, अत्यंत अज्ञानी है। अज्ञानी होने के कारण, मूर्ख होने के कारण अधर्म को ही आप लोग धर्म मान रहे हैं। कौन सा अधर्म किया है ये लोग? बेन दूसरे लाइन में कहते हैं,
जे वित्तिदम पतिम हित्वा जारम पति मुपास। तो पति कौन है, स्वामी कौन है संसार में, परिवार में? पति का दायित्व है, पति का कर्म है पत्नी को भरण पोषण करना है, पत्नी को पालन करना है, परिवार को पालन करना है, पुत्रों को पुत्री को। ये पति का दायित्व है। जो हमें खिला रहे हैं, जो हमें पालन कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए पति है। तो आप लोग हमारे मेरे राज्य में आप लोग हैं और मेरे खा करके, मेरे द्वारा वस्त्र है पहन करके, जो कुछ है मेरे द्वारा आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, और मुझे छोड़ करके इस संसार में और किसी का नाम और किसी को आप लोग भजन कर रहे हैं। इसलिए क्या है, पतिम उपासते जारम पतिम उपासते। आप लोग वेश्या के समान हैं। बेन उन महात्माओं को यही कहते, आप लोग क्या है, बोले आप लोग तो वेश्या के समान हैं। वेश्या जैसी पति को खा करके, पति का धन संपत्ति लेकर के और किसी के साथ उनका आसक्ति होती है। तो आप लोग तो मुझसे ही सब कुछ लेते हैं, मेरे राज्य में आप लोग रहते हैं और सब कुछ खाते हैं पीते हैं और नाम करते हैं भगवान विष्णु। संग से भगवान विष्णु कौन है? कोई नहीं। राजा को छोड़ करके संसार में कोई श्रेष्ठ है ही नहीं है। देखिए किस प्रकार बुद्धि भ्रष्ट होने से, बुद्धि नाश होने से किस प्रकार बात है। इसलिए आप लोगों का ये धर्म जो है, ये धर्म नहीं है। आप लोग अधर्म कर रहे हैं। आप लोगों को ये करना उचित नहीं। क्या उचित है? क्या उचित नहीं। राजा को अनादर करके कोई कहे हमें सुख मिल जाएंगे, ऐसा कोई सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए राजा को मानना है, बेन कह रहा। क्योंकि राजा के शरीर में, संसार में जो देवी देवताएं हैं, सारे देवी देवता राजा के शरीर में निवास करते हैं। कौन देवी देवता? भगवान विष्णु से लेकर सभी देवी देवता राजा के भीतर है। इसलिए राजा पूज्य है। इसलिए बहन कहते हैं, विष्णु विरिंच गिरीशो इंद्र वायु यमो रवि पर्जन्य धनद सोमो क्षिति रग्नि रवाम रपाम पति एते चान्ये च विबुधा प्रभवो बरसा पयो देहे भवन्ति निपते सर्वदेव मयो नृप। ये सभी देवता राजा के भीतर है। कौन कौन? विष्णु विरिंची, विष्णु भगवान विष्णु, विरिंची ब्रह्म, गिरीश शंकर, इंद्र वायु यम रवि सूर्य पर्जन्य। देखिए, और धनद कुबेर क्षिति अग्नि अपामपति, अपामपति अर्थात जल, जल देवता जो है। एते चान्य विबुधा, ये सभी देवताएं जो है ना, इनमें क्षमता है। क्या क्षमता है? वर शापायो, वरदान भी आपको दे सकते हैं, आपको श्राप भी दे सकते हैं। इनमें इस प्रकार क्षमता है। पर ये देवता का निवास कहाँ है? बेन कहते हैं कि सबका निवास नृपते देहे भवंती, महाराज जी के शरीर में सबका निवास है। तो सबका निवास राजा के भीतर होने के कारण सर्वदेव मयो नृप। तो संसार में सर्वदेव मयो नृप, महाराज ही सभी देवताओं से श्रेष्ठ है। महाराज को ही पूजन करना है। महाराज जी को पूजन करने से सभी का सारा मन वासना पूर्ण हो जाए। अर्थात मेरा ही पूजन करो, मैं ही सबका पति हूं, मैं ही सबका भगवान हूं, और संसार में मुझे छोड़ करके भगवान कोई है नहीं है। बेन का यही कहने का तात्पर्य है, तुम लोग मेरी आराधना करो और मुझसे संसार में अन्य
कोई है नहीं है और किसी का आराधना मत करो। और देव कौन है, कौन भगवान है, इस प्रकार जब कहने लगे मत तो अन्य को अग्रभूक पुमान, मुझे छोड़ करके अग्रभूक जो श्रेष्ठ जो है ना, पहला भाग जो है कौन ले सकता, संसार में ऐसा कोई है नहीं, मैं ही हूं। इस प्रकार बेन जब बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण ऋषियों के सामने इस प्रकार उल्टा सीधा बोले, और ये सुनकर के ऋषियों में अत्यंत क्रोध हुए, और इस प्रकार क्रोध हुए, इस प्रकार क्रोध हुए, ऋषियों का होठ कांप रहे हैं, नेत्र दोनों लाल हुए हैं। और जब क्रोधित होकर के उन बेन को देखा, और देखते ही सभी ऋषियों ने, मुनियों ने जोर से हुंकार किया है। देखिए किस प्रकार, और हुंकार से ही उन बेन का सब कुछ खत्म। ये ऋषि लोग क्रोधित होकर के कहने लगे हन्यताम हन्यताम एसो पाप प्रकृति दारुण, हन्यताम हन्यताम एस, अरे इसे मार डालो, इसे मार डालो। ये तो ये तो पापात्मा जो है ना, ये प्रकृति दारुण, ये दारुण भयंकर ये पापात्मा है। जीवन जगत अशो कुरुते भस्मसात अध्रुवम, अगर ये जीवित रहे ना, ये जीवित अगर रहे तो संसार को ये विनाश कर देंगे। आशु होता है शीघ्र ही शीघ्र, सारा धर्म कर्म को विनाश करके सबको विनाश कर देंगे। इसलिए हन्यतम एशो, इन दुरात्माओं को मारो मारो, इनको वध करो वध करो, ये अत्यंत पापात्मा है। देखिए ये निर्लज्ज है किस प्रकार, अरे ये पापात्मा होकर, निर्लज्ज होकर भगवान विष्णु का निंदा करता है। अरे महात्माओं का बात छोड़ दीजिए, देवताओं का बात छोड़ दीजिए, भगवान विष्णु का निंदा कर रहा है। देखिए किस प्रकार ये भयंकर पापात्मा है। इसको जीवित रहने का संसार में कोई हक नहीं है। ये जीवित रहेंगे तो संसार का विनाश ही कर देंगे, इसलिए इनको मार डालो। इस प्रकार जैसे ही ऋषियों ने हुंकार किए, और हुंकार के साथ जिस गद्दी में बैठा हुआ है ना, गद्दी के साथ पृथ्वी के ऊपर धड़ाम करके गिर गए। ऋषियों के देखिए वाक्य में किस प्रकार वाणी, किस प्रकार शक्ति है। जैसे हुंकार किया है, गद्दी के साथ, सिंहासन के साथ पृथ्वी के ऊपर धाम, और गिरते ही प्राण आत्मा शरीर से चले गए, मृत्यु हो गई, जीवित अभी है, खत्म। अभिमान मान 2 दिन के लिए है बस, शरीर मृत प्राण चली गई तो कोई आपका ना अभिमान, ना तो मान, ना तो सम्मान, और कुछ है नहीं। इस प्रकार जब बेन दुरात्मा विनाश हुए है, संसार में हाहाकार मच गए। अरे महाराज जी चले गए, मर गए, सब लोग आनंदित हुए हैं, क्योंकि पापात्मा था, दुरात्मा था। ऋषि लोग इस प्रकार बेन को वध करके, विनाश करके अपने अपने आश्रम चले जाते। और बेन का जननी जो है ना, सुनी था, पुत्र का शरीर उन्होंने नहीं जलाया, अपने घर के भीतर तेल के भीतर पात्रों में तेल डाल करके उसी तेल में मंत्रपुत करके, जैसे भी है नियम था उस समय, उन शरीर को रक्षा करते, शरीर को विनाश नहीं होने। इस प्रकार दिन व्यतीत हुए, कुछ दिन व्यतीत होने के बाद देखिए, राजा अगर संशय में ना हो तो प्रजाओं का क्या हाल हो। अगर कोई शासन करता है नहीं है, कोई देखने वाला कोई है नहीं है, तो लोग तो अपने मनमानी चलेंगे। जिनका पास ज्यादा शक्ति है, ताकत है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। ऋषियों ने, मुनियों ने देख रहे हैं, अब देखो सारे और केवल हाहाकार, इनको मारो, इनसे धन लूटो, सभी प्रजाओं के ऊपर इस प्रकार चोर डाकू जो है ना, इस प्रकार अत्याचार शुरू किया।
अब ऋषियों में अत्यंत दुख हो रहे हैं। अब क्या किया जाए? चारों ओर केवल इस प्रकार केवल हाहाकार है। कोई किसी के साथ मेल है नहीं है। जो माने किसको मारे किससे कोई लौटे, यही केवल चल रहा है। चारों ओर डाकू, चारों ओर चोर, किसको मारना है किसको काटना है। तो ऋषि लोग कह रहे हैं कुछ तो व्यवस्था करना ही है। अगर हम व्यवस्था नहीं करेंगे ये सारा दोष हमें लगेंगे, क्योंकि राजा को तो विनाश हमने बनाया और राजा को हमने विनाश किया, और ये जो परिस्थिति अब हो रहा है इसका पाप हमें लग जाएगी। इसलिए कुछ करना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण समधिक शांतो दीनानाम समुपेक्षक। देखिए ब्राह्मण तो शांत है, ब्राह्मण तो समुद्रिक है। ब्राह्मण अगर इस प्रकार दीन दुखी के लिए अगर कोई उपकार ना करे, अगर उनमें समर्थ है, वो भी पाप का भाग बन जाए। अगर क्षत्रियों में पास ऐसा क्षमता है, वो क्षत्रिय होकर भी इस प्रकार रक्षा नहीं करे, तो उन क्षत्रियों को भी पाप लग सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं ने चिंतन करके अब क्या किया जाए, फिर दोबारा सभी महात्माओं मिलकर के वही राजभवन लौट के आते हैं। कौन सा राजभवन? बेन का जो राजभवन है, मां सुनीता के पास। अब ऋषियों ने निश्चय किया है आप किसको राजा बना जाए, क्योंकि राजवंश में अभी कोई है नहीं। ऋषियों का ये निश्चय है, बेन का शरीर अभी भी विनाश हुआ नहीं, बेन का शरीर है, तो उसी शरीर से हम कुछ करें। राजभवन में आए, सुनीता मां के सामने ये प्रस्ताव रखी। सुनीता मां ने अपना पुत्र का शरीर दे दिया, और उन सभी ऋषियों ने, मुनियों ने मिलकर के उन बेन का जो इनका उरु जो है ना, उरु का मंथन करना शुरू किया मंत्रपुत करके। और मंथन करते करते क्या हुआ है, उसी उरु से एक छोटा सा पुरुष पैदा हुआ, जिसे कहते हैं बौना। हाथ भी छोटा छोटा है, पैर भी छोटा छोटा है, नाक भी छोटा है, चोक भी लाल लाल है, केस जो है ना ये सारा बाल भी लाल लाल है, और देखने में अत्यंत कुरूप, और देखने में अत्यंत काला। काला कैसे? जैसे कौवा जैसा है ना, ऐसा ही है। और शरीर भी इस प्रकार है, क्योंकि ये जो कुछ निकला हुआ है, जो शरीर बना हुआ है, बेन के भीतर जो पाप है, उसी पापों से ही ये शरीर बना हुआ। इसलिए जो ज्यादा से ज्यादा पापात्मा है, ज्यादा से ज्यादा जो नरकीय जीव है, उन जीवों का इस प्रकार शरीर, इस प्रकार योनि उनको मिलता है। संसार में अत्यंत निम्नो कुल जो है, निम्न जाति जो है, उन पापात्माओं के लिए है। ये पापात्मा जो है ये उनका ही वंश लिए है। बेन का मातृका वंश, मृत्यु का ही गुण जो है, सारा गुण को लेकर के प्रकट हो गए। बेन का शरीर पवित्र करके जो कुछ गुण था, सारा गुण को लेकर के वो प्रकट हो गए, पैदा हो गए हैं। और पैदा होते ही हाथ जोड़ करके सभी महात्माओं से कहने लगे हैं, तंतु ते वनतम दीनम किं करोमिति वा दीनम निषिदे ध्रुवम तातोषा निषादस्ततो अभव। देखिए कहे तात त्वम तु अवनतम दीनम किं करोमि इति वा दीनम। जैसे ही वो पुरुष पैदा हुआ ना, दीनम अवनतम दीनम, मस्तक झुका करके दीनहीन होकर के हाथ जोड़ करके उन महात्माओं से यही जिज्ञासा किए है, किम करोमि इति वा दीनम, हमें क्या करना चाहिए, करने के लिए कुछ तो आदेश दीजिए, आज्ञा तो दीजिए, हमें क्या करना है। एक बार नहीं, उस समय बार बार करके कहे। और उन महात्मा लोग तो मंत्रों के साथ फिर शरीर को मंथन करना शुरू किया है।
और ये पुरुष बार बार करके यही कहने लगे, किं करोमि इति वादिनम, किं करोमि, मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। उन महात्माओं ने कहा है निशित, निशित अर्थात बैठ जाओ, बाद में तुम्हें हम आदेश करेंगे तुमको क्या करना है। महात्मा लोगों ने जैसे निशित कहा है, इति अब्रुवन ये कहा है, उसी से इन जातियों का, इन वंशों का नाम हुआ है निषाद। हम कहते हैं निषाद, निषाद होता है निम्न कुल जाति, और ये निम्न कुल जाति निषाद वन जंगलों में रहने वाले हैं, पर्वतों में जंगलों में रहने वाले हैं, वही इनका जन्म, वही उनका मृत्यु, ऐसे इनका हाथ पैरों का ऐसा ही है, इसी के वंश परंपरा में निषाद जाति उत्पन्न हुई है। वो वन चले गए और निशाचर निषाद हुए है। अब वन चले जाने के बाद और ऋषि लोग, महात्मा लोग फिर पृथु महाराज जी का शरीर नहीं, बेन का शरीर जो है, फिर शरीर को फिर मंथन करना शुरू, और ये सारा पाप जब निकल गए, आप शुद्ध स्वरूप जो भगवान का अंश है, भगवान का अवतार जो है, अवतार लेंगे पृथु अवतार। ये पृथु अवतार की कथा, पृथु अवतार की लीला हम आगे हम श्रवण करेंगे। बस वही आज की कथा समाप्त है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में ये दास अधम का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अगर कोई भूल त्रुटि होए आप सब महात्मा जन भक्तजन क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूज्य बात बाबा जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम।